से राजस्थान के हिंडौन में पीएम मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक और दीगर हमलों से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार देने के बाद अब पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ये तीसरी पाकिस्तान के मंसूबों पर, आतंकवादियों के मंसूबों पर, आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है कि नहीं निकल गई? हेकड़ी निकली कि नहीं निकली? आपको अच्छा लगा? यही होना चाहिए ना। मोदी सही रास्ते पर है, आपके आशीर्वाद है ना। प्रदेश के रीवा में राहुल गांधी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझ पर जबरदस्ती पाबंदी आयद कर रहा है। चौकीदार को सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा मुल्क चोर समझता है और अब तो हाल ये है कि बीजेपी के जलसों में भी कोई डर से चौकीदार का नाम नहीं लेता, क्योंकि उनके जलसों में भी अवाम खुलेआम चौकीदार चोर है का नारा बुलंद करने लगी है। राहुल ने कहा कि मरकज में कांग्रेस की सरकार आई तो नौजवानों के हाथ मजबूत किए जाएंगे। देश को लगा था कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की चौकीदारी करेंगे, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, कमजोर लोगों की। पता लगा चौकीदार अब इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा, देखिए आप मेरा भाषण सुनिए, जैसे मैं कहता हूं चौकीदार, जनता कहती है चोर है। अब मुझे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, आप चौकीदार नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप चौकीदार कहते हो जनता कहती है। अब मेरी क्या गलती? मैं तो सिर्फ चौकीदार शब्द प्रयोग करता हूं। अब नरेंद्र मोदी जी भी झिझक के चौकीदार शब्द। मीटिंग में आजकल नरेंद्र मोदी जी भी चौकीदार शब्द नहीं बोलते, क्योंकि गलती से उन्होंने चौकीदार बोल दिया, दूसरे साइड से बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया चौकीदार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये इलेक्शन बेरोजगारी के बहरान के हवाले से अहम है। न्यूज 18 से खास गुफ्तगू के दौरान प्रियंका ने कहा कि ये कहना मुझका खेज है कि मैं सियासत में इसलिए दाखिल हुई हूं कि राहुल नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का फैसला उनका अपना है। On a campaign trail where Mrs. Priyanka Gandhi was there. Priyanka ji, would you say this election is actually a kind of a referendum on Rahul Gandhi? Look, this election is going to be a referendum on the crisis of unemployment and the farmer distress that has been caused in the last 5 years by this government. There is extreme distress, extreme suffering, and that needs to be addressed. But suppose the Congress party doesn't do well and you lose. I'm not in the business of supposing. No, I'm in the business of raising issues which are relevant to the public, speaking about them, understanding them, and highlighting that the public must make an informed decision and vote for those who resolve their issue. But repeatedly this question is raised that you've come into politics because your brother couldn't kind of deliver. That's the criticism coming in from the BJP. That is the most ridiculous thing I have ever heard. And I think that probably they have nothing else to say. Therefore they raise these ridiculous things. Actually, it's yeah. And Priyanka ji, Smriti Irani's every campaign is about the absentee the absentee MP. Look, Smriti Irani has been to Amethi all of 16 times. Each time she has spent about 4 or 5 hours in Amethi.
My brother has been to Amethi more than double that time in the same time period. He stays there. He goes village to village. He listens to people. He understands their issues. He is the only one who has worked for Amethi. All the projects which were inaugurated by him and started by him have been stopped by who? By Smriti Irani and her party and her government. So if she really cared for the people of Amethi, she wouldn't have stopped the projects that were going to benefit the people of Amethi. And if push comes to shove, are you open to an alliance with an SP-BSP post-electoral results? That question you will have to ask my brother. Those decisions are taken at a national level by a group of... And he's always said, I'm not in the game of becoming the Prime Minister, but why that reluctance? What's wrong if you project him as the Prime Minister? This term, reluctant, has been pushed on my brother. My brother has never been reluctant. He has always been fully committed to his job. He has done his job responsibly and he continues to do so. And what about you? What about me? What about your reluctance? Because people say that you're also reluctant. Also You opted now out of I'm Varanasi. reluctant. Yeah, that's what they said. You've So opted out of I'm General Varanasi. Secretary of the Congress Party because I am reluctant. And you opted out of Varanasi because you were Just reluctant. because I made a personal decision to remain out of politics for a certain amount of time, it doesn't mean that when I decide to enter politics, I'm... दिल्ली में भी इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। दिल्ली से बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार शाहिद अली ने इलेक्शन ऑफिसर पर इम्तियाज बरतने का इल्जाम आयद किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए शाहिद अली ने कहा कि इलेक्शन ऑफिसर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी में कहीं न कहीं ये डर और खौफ है। शाहिद अली ने कहा कि अब वो इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ अदालत का रास्ता अपनाएंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शाहिद अली से खास बात की। दिल्ली में बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उस मुस्लिम उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर पर बड़ा आरोप लगाया, बड़ा इल्जाम लगाया कि उनको तशहीर नहीं करने दी जा रही है। हमारे साथ शाहिद अली एडवोकेट हैं, बीएसपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था चांदनी चौक से। शाहिद साहब, क्या आपको दिक्कत पैदा हुई? देखिए, इलेक्शन कमीशन दिल्ली का हमें कोई भी काम करने नहीं दे रहा है। हमारी तमाम परमिशंस रिजेक्ट कर दी। आज की हमारी रोड शो की परमिशन थी जो रिजेक्ट कर दी। आज की हमारी जनसभा की परमिशन थी वो रिजेक्ट कर दी। हमारी ऑफिस खोलने तक की परमिशन रिजेक्ट कर दी। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी तक की परमिशन रिजेक्ट कर दी। इससे बड़ी और क्या बात होगी। और जो हमने कल परसों तरसों की जो परमिशंस मांगी हैं, अभी अभी इन्फॉर्मेशन आई है, वो सब भी परमिशन हमारी रिजेक्ट कर दी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हम लोग सिर्फ घर के अंदर बैठ जाएं और कोई कन्वेंसिंग ना करें। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या ये प्रजातंत्र? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, प्रजातंत्र का मर्डर है। साफ तौर से प्रजातंत्र का कत्ल किया जा रहा है। और जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि बहुजन समाज पार्टी को, जो शाहिद अली हैं, यहाँ से हम जो खड़े हैं, एक ज़बरदस्त इनपुट मिल रहा है। दलित भाइयों को भी मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है। तो इन लोगों को अपनी कुर्सियाँ हिलती हुई नज़र आ रही हैं। चतुष्कोणीय मुकाबला है। 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, 4 लाख हम दलित वोटर्स हैं। तो ये इनको एक समझ में आ रही है बात कि कहीं ये जीत ना जाए इलेक्शन। इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश ये की है कि हम लोग घर के अंदर बैठ जाएं, कोई कन्विंसिंग ना करें। किसके इशारे पर काम कर रहा है? किसकी वजह से आपको रोका जा रहा है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और आप पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अब आप क्या कदम उठाएंगे? अब हम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, पब्लिक का रास्ता अख्तियार करेंगे। 10 तारीख को माननीय बहन जी की मीटिंग है दिल्ली के अंदर। हम बहन जी के माध्यम से भी इस बात को उठाएंगे। और 12 तारीख को इलेक्शन है। आप देखिएगा, जब 10 तारीख को बहन जी की मीटिंग होगी तो पूरा दिल्ली आपको नीला नजर आएगा इंशाल्लाह। तो ये थे मुस्लिम उम्मीदवार शाहिद अली एडवोकेट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कोर्ट का रास्ता है वो इख्तियार करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उनको तशहीर जो है वो नहीं करने दे रहा है। कैमरामैन चंदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तमाम बड़ी सियासी पार्टियां जी जान से मेहनत कर रही हैं। दिल्ली के हवाले से बीजेपी का क्या स्टैंड है, इस बारे में हमारी नुमाइंदा रचना ने गौतम गंभीर से बातचीत की। गौतम, क्रिकेट से पॉलिटिक्स किस तरीके का डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, बहुत चैलेंजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बिकॉज आप लोगों के बीच में उतरे हो। इससे पहले आप ऐसे स्पेस में रहते थे जिसमें आप सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकते थे। अब आप लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। गौतम, मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में आने के पीछे 2 लोगों का अहम रोल है। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो ऐसे कौन से 2 लोग थे जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर किया? देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री, बिकॉज इस देश को एक ऐसे लीडर, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर और लीडरशिप की ज़रूरत थी। और दूसरे, अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली के सीएम, बिकॉज जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में सिर्फ ब्लेम, और मैंने
उससे पहले मेरा कोई मकसद था राजनीति में आने का, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे प्रॉमिसेस करते हो जो आप अचीव नहीं करते हो, लोगों को इमोशनल बना के उनसे वोट लेते हो, वो मुझे लगता है कि सबसे नीची राजनीति है। जहाँ पर आप साफ़ हवा के लिए काम करते, साफ़ पानी के लिए काम करते, शायद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े वायदे किए, तो वो जो बिट्रेयल है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आपने बात की ब्लेम की अरविंद केजरीवाल की, तो आम आदमी पार्टी की आतिशी आपके सामने खड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कई तरीके के ब्लेम लगाए। 2 वोटर आईडी कार्ड की बात की, उन्होंने कहा कि आप डिबेट से भाग रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 2 वोटर आईडी का मुद्दा है, ये इलेक्शन कमीशन के सामने है। उन्होंने तो मेरे अगेंस्ट FIR भी फाइल करी थी, जो रिजेक्ट हो चुकी है। मैंने तो ओपन चैलेंज दी है, और ओपन चैलेंज वो भी रैली में दी है, और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को दी है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे की। एक डिबेट की एक शर्त होगी, वो शर्त ये होगी, ना तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि वो जो पीछे से गोलियां चलाने वाली राजनीति ना मैंने सीखी है, ना मैं उस प्रोफेशन से आया हूँ। मैंने आमने सामने की लड़ाई करी है, और ना ही वो 1-on-1 किसी रूम में बैठ के इंटरव्यू के थ्रू होगी। इस दिल्ली को लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोचा है कि क्या आगे करेंगे? देखिए, सबसे पहले विजन ये है कि आप ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, शायद सबसे क्लीन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए। 23 मई को मैन ऑफ द मैच किसके नाम है? देखिए, वो वक्त ही बताएगा। मैं ऐसे प्रोफेशन से आया हूँ जहाँ मैं प्रेडिक्ट नहीं करता। आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि जी हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, हम ये हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, जहाँ तक मेरा सवाल है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज़्यादा सीटों से सरकार बनाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि मैदान में उनके सामने कोई दमदार उम्मीदवार है ही नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बात की। बात करने के लिए मौजूद है चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? आपके सामने आम आदमी पार्टी है और आपके सामने कांग्रेस के JP अग्रवाल है। देखो, ऐसा है, 1 महीना तो हो गया मुझे सुबह से रात तक घूमते हुए। मुझे तो अभी तक मुकाबला कहीं दिखाई नहीं दिया है। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है और कौन सा सवाल आप पूछ रहे हो? आपका सवाल ही गलत है। कांग्रेस कह रही है कि हमें चौकीदार की नहीं, सेवादार की जरूरत है। ऐसा कांग्रेस क्या कहती है हमें पता नहीं। हम तो देश के चौकीदार हैं। हमें जो है 125 साल पुरानी कांग्रेस, जो अब भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है, ना तो उस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना हमें आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा ना कि ये जो पार्टियां हैं, इनकी सारी राजनीति झूठ, लोगों को गुमराह करना, बरगलाना, लेकिन अब वो समय बीत गया है, इसलिए अब आप किसी को झूठी मूठी बातें करके बहका नहीं सकते। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका कहना है कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी। कैमरा पर्सन अबू पाठक के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से नाराज है। खासकर मगरबी बंगाल में चुनाव सही तरीके से नहीं कराने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, अभी आप चुनाव आयोग गए थे, क्या शिकायत आपकी थी, क्या बात आपने चुनाव आयोग के सामने रखी? चुनाव आयोग के सामने मैं ये बात रखा कि जिस चुनाव आयोग को हम लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव कराने की एक काबिल संस्था है, प्रतिष्ठान है, हमारे संवैधानिक प्रतिष्ठान, जिनकी जुबान पे हम भरोसा रखते हैं, और इनकी जुबान से ये निकला था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इनकी ये जो वादा निभाने में जो ऑफिसर को भेजा गया वो पूरी फेल्यूर है, और ये चुनाव आयोग का जो वादा हुआ पूरा नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ा दुखद की बात है। बड़ा दुखद की बात इसलिए है कि चुनाव आयोग की वादे पे भरोसा करके मैंने वहाँ के हमारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, आम वोटर को, बंगाल के आम वोटर को बड़े दावे के साथ ये कहा था कि आप निश्चित रहो, भयभीत मुक्त होकर आप चुनाव में भाग लो, चुनाव में हिस्सा लो, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारे जिम्मा लिए हैं। फिर भी हम देखा चुनाव भयभीत से मुक्त नहीं हुआ। सिर्फ मेरा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, मेरा क्षेत्र की अगर बात करें, तो मैं वहाँ के जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर मिस्टर विवेक दुबे, आप अचरज होंगे, बात करने की हजारों कोशिश के बावजूद वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए मैं कहा कि हम कहाँ अभी आ गए कि
कि जिस पुलिस ऑब्जर्वर को भेजा जाता है वो अगर बात नहीं करना चाहते तो किसको मदद करना चाहते हैं? वो सरकार की मदद किए हैं बंगाल की सरकार को, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत चुनाव हुई थी वो पंचायत चुनाव में लूट और दहशतगर्द फैला गया था, कोई लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाए। और उस दिन वहाँ के एसपी और डीएम इसका अगुवाई किया था। वो एसपी डीएम अभी भी अपना अपना चेयर पे मौजूद है। तो कैसे चुनाव होगा, कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? हमारा टाउन बहरमपुर टाउन में जहाँ कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक, वहाँ 97 बूथ, सुबह सुबह हमने खबर मिला कि 97 बूथ में कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। ये बेकार बात हो रहे हैं यहाँ कि 100% सेंट्रल फोर्सेस तैनात हुआ है, नहीं हुआ। 100% सेंट्रल फोर्स नहीं तैनात हुआ, और वो भी जहाँ तैनात हुआ उसमें भी गड़बड़ी है। बीएसएफ वालों ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन सीआरपीएफ वालों ने मेरा डिस्ट्रिक्ट का जब तक सवाल है, सीआरपीएफ वालों ने बहुत अच्छा काम किया। अब बात करते हैं तूफान फानी की। तूफान फानी उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। पूरी में 180 फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जनों दरख्त उखड़ गए हैं। दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। उड़ीसा में 15 अजला के लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तूफान फानी के पेश नज़र 4 रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान फानी मगरबी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की जानिब चला जाएगा। मगरबी बंगाल के साहिल इलाकों में भी तूफान फानी की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने वाइजाग, चेन्नई, पारादीप, गोपालपुर, हल्दिया, फ्रेजरगंज और कोलकाता में डिजास्टर रिलीफ की 34 टीमें तैनात कर दी हैं। वाइजाग और चेन्नई में कोस्ट गार्ड के 4 जहाज तैनात हैं। विशाखापट्टनम में बहरिया के 13 जहाज़ों को नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र तैयार रखा गया है। तूफान के मद्देनज़र 100 से ज़ायद ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी गई है। फानी तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। उड़ीसा में एनडीआरएफ की इजाफी टुकड़ियां लगाई गई हैं। एनडीआरएफ मुतासरीन को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में भी मदद कर रही है। वहीं दीगर रियासतों में भी एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के डीआईजी रणदीप राणा से बात की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। उड़ीसा सहित कई राज्यों में जिस तरह से चक्रवात के आसार दिख रहे हैं और जिस तरह से वहां पे बकायदा चक्रवात वहां पे कहर ढा रहा है, इस मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ है रणदीप राणा। सर, किस तरह से बकायदा एनडीआरएफ की टीम वहां पे मुस्तैद है और आप लोग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? साइक्लोन फानी के सिलसिले में पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ की टीम्स प्रभावित इलाकों में लगातार तैनात है। इस समय अभी फिलहाल अभी कितने टीम है, कितने, और इसके साथ साथ में आसपास अभी तक क्या खबर मिल रहा है, कितना वहां पर तबाही हुआ है या क्या अभी सिचुएशन है? देखिए, जो इस प्रभाव की शुरुआत करें तो जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज हैं उनमें आज सुबह से लगभग 7:30-8 बजे के बाद से प्रभाव कम होना शुरू हो गया था और वहां पे हमारी 12 टीम लगी हुई हैं, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन जो भी रेस्टोरेशन के काम की जरूरत है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार आज सुबह से ही काम कर रही है। कितनी टीम? उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में 12 टीम एनडीआरएफ की अभी काम कर रही है। उड़ीसा में जहां पे लैंडफॉल हुआ है वहां पे एनडीआरएफ की 28 टीम लगी हुई हैं और आज सुबह तक पिछले 3 दिन से दिन रात वो लोगों के बीच में रह के ही जागरूकता अभियान चला रही थी, इवैक्यूएशन में मदद कर रही थी। और अभी जैसे जैसे मौसम इजाजत देगा बाहर निकल के काम करने की, हमारी टीम्स उसी प्रकार से साइक्लोन का प्रभाव को देखते हुए जगह जगह जाके अब लोगों के बीच में पहुंच के उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है।
तो जिस तरह से बात की जाए, अगर एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव का कार्य जो है लगातार कर रही है। और इसके साथ ही जो अन्य दूसरे राज्य की बात करें, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य जो हैं बकायदा जहां पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है, बकायदा वहां भी एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है। और एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में भी बकायदा इस मामले पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और बकायदा हर एक रिपोर्ट्स को बकायदा खंगाला जा रहा है। और जैसे ही जानकारी मिल रही है तो उस जगह पर एनडीआरएफ की टीम को भेज करके राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने आज नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज जवाब मांगा था। सीबीआई शेल्टर होम में हुए 11 कत्ल के मामलात की जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि शेल्टर होम में खुदाई के दौरान हड्डियां मिली हैं। कत्ल के मामलात में अहम मुलजिम ब्रजेश ठाकुर समेत दीगर लोगों को मुलव्विस होने की भी जांच की जा रही है। वहीं सीबीआई ने जांच को मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। मजीद इस मामले में कोर्ट 6 मई को समाअत करेगा। शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में 11 लड़कियों की हत्या कर दी गई है और उनके शव की तलाश सीबीआई द्वारा की जा रही है। हाल ही में मुजफ्फरपुर शेल्टर में कुछ जगहों पर सीबीआई ने खुदाई भी की है, जहां पर कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि सीबीआई पर यह आरोप लगता रहा कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली और ताकतवर लोगों को बचाया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, लेकिन सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रकार के आरोप जो लग रहे हैं वो गलत है। सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है, चूंकि जांच काफी क्रूशियल स्टेज पर है और सीबीआई ने यह बताया है कि जो हत्या हुई है उन हत्या के पीछे इस मामले का जो मास्टरमाइंड है ब्रजेश ठाकुर और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से उनका जवाब मांगा है। अब इस पूरे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। देखना यह होगा कि सोमवार को जब यह सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश देता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। हैदराबाद में मुकद्दस माह रमजान के पेश नजर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। पुराने शहर के सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक्किद इजलास में 4 मीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के अलावा उलमा, मशाइखीन और GHMC और पुलिस के आला ओहदेदार शरीक थे। GHMC कमिश्नर राणा किशोर ने कहा कि पुराने शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा सफाई के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि रमजान के पेश नजर मसाजिद और अहम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर इलाके पर CCTV कैमरों के जरिए खसूसी नजर रखी जाएगी। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है।